मुंबई श्री नारायण गुरु कॉलेज ऑफ कॉमर्स स्वायत्त महाविद्यालय द्वारा स्वायत्त दर्जा प्राप्त करने की उपलब्धि पर बुधवार को चेंबूर में हर्षोल्लास के साथ समारोह आयोजित किया गया। महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में स्वायत्त दर्जा मिलने की आधिकारिक घोषणा की गई तथा शिक्षा के विकास और भविष्य की दिशा पर विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपाध्यक्ष, रिलायंस जियो विश्वविद्यालय के सलाहकार एवं प्रतिष्ठित शिक्षाविद, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर VN राजशेखरन पिल्लई उपस्थित रहे। वहीं प्रमुख वक्ता एवं विशेष अतिथि के रूप में मुंबई विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति राजन वेलुकर ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर SNMS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की डायरेक्टर डॉक्टर NC जोसेफ, महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर जयश्री वेंकटाचलम, SNMS के अध्यक्ष N मोहनदास, MI दामोदरन सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। We'll be speaking only in English. No? Okay, fine. I understand what you can ask me in Hindi, no problem. But I will be speaking. इनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है ऑटोनॉमस होने से और यूनिवर्सिटी का कितना फर्क पड़ता है क्या? कितना? What is differentiate between autonomous and Can I start? Yes. So this is a very significant milestone in the history of the Srinarayana Guru College of Commerce. It is an affiliated college of Mumbai University, the first three universities in the country. For the last 40 years, this has been an affiliated college. Now, the University Grants Commission and the Bombay University freeze the college in the sense that the administrative entanglements, administrative things which are part of the affiliation system is not going to be fully with this autonomous college, not going to be fully, it is not completely withdrawn. So it can conduct, it can design its own courses, it can design examinations, it can conduct examinations, declare the results, and finally the Bombay University degree will be given. This is a milestone in the sense that the country is thinking of having only universities in the country within the next few years. There will be only three kinds of higher education institutions in the country by 2035 or so. That is the expectation of the country. Teaching universities, teaching and research universities, and research universities. And this is a first step for this autonomous college now to become a teaching and research university. And being in Bombay, this has a lot of great potential, connecting with the industry, connecting with the finance industry, connecting with the other chemical, lot of other industries are there. So Bombay is the industrial and financial capital of the country, maybe of the world probably. And Bombay is also developing in a significant way. For example, Bombay 3 is coming, foreign universities are coming in Bombay 3. So in the years to come, we can expect that our own colleges will also have the same autonomy that is provided to the foreign universities. That is the expectation. It will happen. And therefore, taking the right step in exercising the autonomy for this college is very important. The policy allows it now, but it is for the college to take it up forward, connecting with the industry, connecting with the civil society organizations and all that. More than that, I was very happy that this particular college carries the name of a world-renowned social reformer, Srinarayana Guru. He, in the southern state like Kerala and the southern region, he promoted the upliftment of the society at all levels. He mentioned that only through education, the empowerment of the society can happen. That is his preaching, almost 170 years ago. And in a state like Kerala, the quality of life
the enhancement of the quality of life and life management systems is primarily because of the preachings of Srinarayana Guru, a social reformer. And this institution carries the name of Srinarayana Guru, not just the name. The Srinarayana Mandir Samiti definitely believes in the principles of Srinarayana Guru, and applying that principles to education, that can create this institution a great one, a global one. That is the expectation, and I am very confident that the kind of leadership in the management, the director, the principal, and the former the teachers will work for that. And autonomy, it is for the teachers, it's good. It's for the students, it's good. It is for also for enhancing the overall capabilities of the institution. It's very important. They have a right kind of leadership, and I am very confident that in the years to come, I want to make it an agenda. That's why I'm saying, in the years to come, within a few years, this will become a university in Bombay. श्री नारायण गुरु महाविद्यालयाला स्वायत्तता विद्यापीठ अनुदान आयोगाने जे दिलेली आहे, मला असं वाटतं की या अतिशय अशा भागामध्ये, ज्या भागामध्ये गोरगरीब जनता आणि त्यांचे मुलं काही अंशी फर्स्ट जनरेशन लर्नर पण या ठिकाणी येत असताना, अशा महाविद्यालयाला त्यांच्यासाठी योग्य ते आणि नवीन शिक्षण देण्यासाठी जी स्वायत्तता दिलेली आहे ती अभिनंदनीय आहे. आणि नारायण गुरु महाविद्यालयाने गेल्या 40 वर्षांमध्ये जी काही प्रगती केलेली आहे त्याची ही एक स्वायत्तता पोच पावती आहे असंच मी मानेल. विद्यार्थ्यांना या स्वायत्ततेच्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीसारखे शिक्षणक्रम आणि अभ्यासक्रम महाविद्यालय या निमित्ताने सुरू करू शकतो, कारण त्यांना ती स्वायत्तता आहे. आणि हे महाविद्यालय एन्थुझियास्टिक आहे. महाविद्यालयातले सगळे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी आणि संस्था चालक देखील आनंदित दिसलेत. तर मला असं वाटतं की हे आनंद त्यांच्यामध्ये जो आहे तो अधिक या परिसरामधल्या विद्यार्थ्यांना आणि विद्यार्थिनींना रोजगार निर्मितीच्या दृष्टिकोनातून अधिक चांगले अभ्यासक्रम ते सुरू करतील आणि विद्यार्थ्यांचं भलं करतील अशी मला खात्री आहे. तंत्रज्ञान हे अनेक काळापासून बदलत गेलेलं आहे. AI हे एक नवीन तंत्रज्ञान आलेलं आहे. म्हणजे पहिले संगणक आले, आपल्याला भीती वाटली, आणि मोबाईल आले, मग आपल्याला भीती वाटली. आता AI आला, आपल्याला भीती वाटते. पण प्रत्येक तंत्रज्ञानाच्या परिवर्तनामध्ये जगाने मार्ग काढला आणि नवीन काहीतरी घडलं. म्हणजे काही नोकऱ्या जरी गेल्यात तरी काही नवीन नोकऱ्या निर्माण होण्याची शक्यता आपल्याला नाकारता येत नाही. आणि म्हणून महाविद्यालयाने आता स्वायत्त असल्यामुळे चीनने ज्याप्रमाणे AI इंटिग्रेशन केलेलं आहे, AI हा नवीन विषय शिकवायचा नाही, पण AI सगळ्या याच्यामध्ये इंटिग्रेट करून जर शिकवलं तर या संपूर्ण महाविद्यालयातल्या मुलांना नक्कीच नोकरी किंवा ते स्वतःचा उद्योगधंदा सुरू करू शकतील. आणि म्हणून AI इंटिग्रेटेड करिक्युलम या महाविद्यालयाने सुरू करावा अशी आमची सूचना आहे. जरूर. पहले तो ऑटोनॉमी मिल गया, उसके ऊपर बहुत खुशी है, और उसमें मालूम भी पड़ता है कि जिम्मेदारी बढ़ गया. लेकिन ये जिम्मेदारी लेने के लिए खुशी है, क्योंकि ये जिम्मेदारी का फ़ायदा हमारा स्टूडेंट्स को हो जाएगा, हमारे नियर बाय सोसाइटी कम्युनिटी का बच्चे को हो जाएगा. इसलिए वो जिम्मेदारी लेने के लिए बहुत खुशी है. विद्यार्थी के लिए ये लाभ हो सकता है, अभी तक क्या था, यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस देता था वही पढ़ना पड़ता था, पसंद है या नहीं. अभी ऐसा नहीं है. हम बच्चे के साइकोलॉजी समझ में आकर और इंडस्ट्री को जो चाहिए ऐसा सिलेबस हमको बना सकता है.
इसलिए ये आपको तो मालूम है, ये बच्चे लोग इतना पढ़ा लिखा घर से नहीं आता है, वो बच्चे के लिए ये बहुत यूज़फुल होगा। बिकॉज इंडस्ट्री के साथ हम सिलेबस बनाएगा, इंडस्ट्री के साथ ये बच्चे का स्किलिंग इम्प्रूवमेंट होगा, सो दैट ये बच्चे को जॉब मिलना ईजी हो जाएगा। और कॉलेज ऐसा नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करेगा आने वाले साल में। अभी हमने डिसाइड किया कि फर्स्ट ईयर के लिए अभी इंट्रोड्यूस करेगा 26-27 में, 27-28 में सेकेंड ईयर के लिए, ऐसा प्रोग्रेसिवली हम इंट्रोड्यूस करता है। सो हम नया प्रोग्राम ऑलरेडी 4 नया प्रोग्राम पाइपलाइन में है, सो वो हम इंट्रोड्यूस करेगा। वही सबसे बड़ा अचीवमेंट है बच्चे के लिए। तो क्या है? देखिए, ये कॉलेज मिड 80s में हम लोग स्टार्ट किया। इंटेंशन ये था कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स को अफोर्डेबल कॉस्ट में एजुकेशन मिलना चाहिए। दैट वाज आवर एम, स्टिल वी आर कंटिन्यूइंग फॉर दैट ओनली। तो हम लोगों का जो गुरु है, श्रीनारायण गुरु, उसका आदेश पर यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हम लोग 70s में स्टार्ट किया। उसका उद्देश्य ये था कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स का जो एरिया है ये, क्योंकि स्लम एरिया है, स्लम एरिया में हमारा इंस्टीट्यूशन में इनिशियली नहीं, अभी भी जो फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट्स आ रहे एजुकेशन के लिए, जिसको स्कूल क्या है, एजुकेशन क्या है मालूम नहीं था, वैसा लोगों को एजुकेट करना। क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को हमारा स्कूल से हायर एजुकेशन में हाई स्कूल एजुकेशन मिला है, फिर आगे जाके उन लोग डिग्री वगैरह लेके सोसाइटी में अच्छा पोस्ट में उन्होंने जॉब हासिल करके रिटायर्ड भी हो गया है। लेकिन अभी का जो सिचुएशन क्या है, जो बच्चा एजुकेशनली बैकवर्ड, जो बच्चा का पेरेंट्स एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनके लिए कॉलेज एजुकेशन पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा एक कंडीशन हमारे इंडिया में हो गया है। उसको एक लिमिट तक आश्वासन देने के लिए अफोर्डेबल कॉस्ट में अच्छा एजुकेशन देने का उद्देश्य दृष्टि से हमने इसको इंस्टीट्यूशन को चला रहे हैं। अभी आगे जाके ये डीम्ड यूनिवर्सिटी बनेगा, तो 2 साल का अभी राजशेखर एमएलए सर ने जो शेड्यूल बनाया है, वो शेड्यूल के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। तो विद इन 2 years it will become a यूनिवर्सिटी। तो हम लोग सब उसके लिए काम करता हूँ। अभी के ऑटोनॉमस होने के बाद में हमको बहुत सारा फ्रीडम आ गया, और एक बार डीम्ड यूनिवर्सिटी होने के बाद में और भी फ्रीडम आएगा। उसका लाभ यहाँ का बच्चा लोगों को होगा, क्योंकि ये जो मैनेजमेंट जो काम कर रहे हैं वो कोई इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये जो इंस्टीट्यूशन से जो भी इनकम जनरेट हो रहे हैं, इनकम इधर का डेवलपमेंट के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हम लोगों को ट्रस्टी लोग 1 रुपया यहाँ से लेके नहीं जाते, और हम लोग हमारा खुद का पैसा से एक सेवा जैसा, गुरु का सेवा है। वी ऑल आर स्पेंडिंग मनी फ्रॉम आवर पॉकेट एंड डूइंग ऑल दिस थिंग्स। तो कुछ हम लोग कहीं से भी यहाँ का 1 पैसा भी बाहर नहीं जाता है, तो वो पैसे यहाँ पर ही जनरेट हो रहे। तो आने वाले सालों में जो यंग जनरेशन के लिए उसका बेनिफिट होगा। देखो, हम लोग अभी CBSE स्कूल भी स्टार्ट किया है। उनमें नोड में हमने हमारा एक CBSE स्कूल स्टार्ट हो गया। यहाँ पे एक CBSE स्कूल है, अभी तारापुर में एक CBSE स्कूल स्टार्ट किया। सभी CBSE स्कूल का फीस स्ट्रक्चर उस एरिया का बाकी स्कूल का फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप कंपेयर करेगा, ऑलमोस्ट 60% बाकी लोगों से कम है हमारा। क्योंकि हमारा इंटेंशन है कि एक विथ अफोर्डेबल कॉस्ट में अच्छा एजुकेशन देना है। ये हमारा प्रयास जारी रहेगा आने वाला दिनों में। देखो, हम लोगों का अभी कितना दिन हम लोग इसको चला सकते हम बोल नहीं सकते, लेकिन जब तक गुरु का इच्छा है तब तक ये इंस्टीट्यूशन अच्छी तरह से चलेगा। चीफ गेस्ट ने बोला है कि फ्यूचर में ये ग्लोबल यूनिवर्सिटी बने। दैट इज अवर एम, दैट इज अवर एम। लेकिन 2 साल में डीम्ड यूनिवर्सिटी तो पक्का बनेगा। सर, आने वाले समय में जो यहाँ के स्थानिक बच्चे हैं उनको कितना फायदा होने वाला है मराठी मीडियम? देखिए, जो मेरा पर्सनल इंटेंशन क्या है, जो एजुकेशन एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन अपना मदर टंग से स्टार्ट होना चाहिए।
लेकिन आज हम लोगों का इंडिया में क्या हो गया, ब्रिटिश लोग तो यहाँ से चले गए, लेकिन उन लोग जो छोड़ के गया पिल्लू जो इंग्लिश, वो हम अभी भी पकड़ के चल रहे हैं। क्योंकि हमारा इंडिया में इतना अच्छा लैंग्वेज है, संस्कृति है, ये सब छोड़ के अभी भी हम ब्रिटिश के पीछे जा रहे हैं इंग्लिश सीखने के लिए। ये लोगों को ये पता नहीं है वेल्ड में इंग्लिश कितना यूज कर रहे हैं। अदर देन कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहीं भी इंग्लिश किसको भी मालूम नहीं है, लेकिन हमारा इधर उसका कोई असर नहीं है। सबको, मेरा बच्चा इंग्लिश में एक वर्ड बोलेगा तो मेरे को एकदम प्राउड है। जब तक वो मेंटालिटी पेरेंट्स का नहीं चेंज होते तब तक मराठी मीडियम के लिए या दूसरा कोई भी लोकल लैंग्वेज के लिए खतरा है। खुशी है ऑटोनॉमस का दर्जा मिला है, कितनी खुशी है और किस तरह बदलाव आएगा यहाँ पर। जैसे वक्ता ने कहा कि आसपास का जो सराउंडिंग एरिया, कई स्टूडेंट ऐसे जो फर्स्ट टाइम लर्नर है उनके फैमिली से, तो क्या कहेंगे कितना अच्छा ये ऑटोनॉमस हुआ है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, श्री नारायण मदरसा में गया 50 साल से इधर एजुकेशन चालू किया है, स्कूल चालू किया है। उस टाइम इस लोकेशंस का सिचुएशंस था बहुत ही घोर गरीबी जा होता, स्लम्स एरिया होता आता सुधा, अभी भी स्लम एरिया। हमारा ये इंस्टीट्यूशन सीधा स्थापना करने के उद्देश्य भी ऐसे ही था, फाइनेंशियली बैकवर्टेड एंड सोशली बैकवर्टेड, फाइनेंशियली डाउन रोड एंड सोशली बैकवर्टेड लोगों को कैसे अपलिफ्ट करना है, ये श्री नारायण गुरु का एक तत्व होता। तो तत्वज्ञान अनुसार हमें है ना इस एरिया पे हमने स्कूल्स उस टाइम चालू किया है। वहाँ से हम चल के अभी यहाँ तक आ गया। अभी कॉलेज ऑटोनॉमस हो गया, उसमें बहुत खुशी है, हमारा मैनेजमेंट सभी खुशी है। मैनेजमेंट का बहुत एफर्ट्स है इसके पीछे। मैनेजमेंट ने हमने 303 लोगों का एक मैनेजमेंट सिस्टम है इधर। ये 303 लोग और हमारा जो एग्जीक्यूटिव कमेटीज जो है उसके अंदर 16 लोग हैं, ये सभी मिलके आनंद से डे नाइट काम करता है, उसका एक रिजल्ट है। और उसमें हमारा स्टाफ भी बहुत प्रयत्न किया, प्रिंसिपल बहुत से है ना उसके पीछे प्रयत्न किया। सभी टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ लास्ट 5 ईयर से ऑटोनॉमस के लिए और ये किया है। ऑटोनॉमस ये जो है, ये जो हमको सैंक्शन मिला उसका मतलब वो ऐसे नहीं मिलेगा, इसका एफर्ट्स है, उसका पीछे का जो एफर्ट्स है वो एफर्ट्स सभी डिपार्टमेंट खड़ा करने का एफर्ट्स, उसमें हम सक्सेस हुआ तभी तो ये हुए है। और इसके अंदर इस परिसर का जो एजुकेटेड लोग हैं, हमने एक अलुमनी इधर किया था अभी, ये 50 साल पहले हमारे स्कूल पे जो विद्यार्थी ज्वाइन हुआ था उनका जो अभी एक अलुमनी प्रोग्राम्स हुआ था, वो प्रोग्राम ने आपने देखा होगा 1200 के ऊपर बच्चा मीन्स वो सब रिटायर्ड हो गया, सब वर्ल्ड रिटायर्ड है, तो सभी लोग जमा हुआ था। उसी के अंदर कुछ लोग ऐसे इंटरव्यू में बोलता था कि हमको इधर का डॉक्टर के दामोदर ने दोपहर का खाना कंपलसरी देता था, और दूसरा एक किसान का नाम बोलता था, वो हमको फीस देता था। ऐसे 15-16 लोग मेरे से बोला और स्टेज पे भी उन्होंने बोला। उस टाइम से हमारा इंटेंशन वही है, एजुकेशन देना और गेन फ्रीडम थ्रू एजुकेशन से अपना नारायण गुरु का ये है। एजुकेशन से अलावा दूसरा अपने को कोई फ्रीडम नहीं मिलेगा, कभी भी मालूम नहीं होगा। ये उद्देश्य हमने इधर काम कर रहा है, वो उसका सफलता हो रहा है। अभी हम लोग सब आनंद से है। और अभी अपना राजशेखर सर ने और नवेलेकर साहब ने बोला तो जल्दी से जल्दी है ना आपको एक यूनिवर्सिटी हो जाएगा, यूनिवर्सिटी होएगा तो भी ऐसे ही होएगा। इधर का परिसर का जो है गरीब बच्चों को है ना उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होने का दृष्टिकोण तो हम प्रयत्न करेगा। सर एक क्वेश्चन था, कितना फायदा होगा मराठी मीडियम को चालू होने से? मराठी मीडियम चालू होने से क्या है, अभी मैं बोलना नहीं चाहिए इंटरव्यू के अंदर, मराठी मीडियम चालू होने से जिसके पास फीस देने को नहीं है, जिसका काम धंधा नहीं है, जिसका बच्चा जिसका मदर है ना वो दूसरा घर पे है ना वो बांटी कसता है, ऐसे काम करता है अभी भी है ना, वो ऐसे सिचुएशन अपना इधर दुर्भाग्य है, ये सोसाइटी का दुर्भाग्य है। ऐसे घरों से जो बच्चा आ रहा है, हमने इस साल में भी उसको 12 लाख रुपया उसको फीस कंसेशन देने वाला है, 12.5 लाख है ना, वी आर गिविंग कंसेशंस। ऐसे वो मराठी मीडियम स्कूलों से ना, मराठी मीडियम स्कूल से इधर जो 16वां बैच अभी गया है, अब उसके अंदर उसका जो रिजल्ट्स देखेगा ना, सभी बच्चे जो पास हुए एडवोकेट से डॉक्टर से हम कभी सोच भी नहीं सका। मगर ना एक मीटिंग हमने बुलाया था, हमारे इधर का एक पीयून मैडम रिटायर हुआ, पीयून नया आया
तो उनको जो हमने सेंड ऑफ करने के टाइम उसने उसका दोनों बच्चों को लेके आया था। वो एक बच्चा एडवोकेट है, एक तो है ना रेलवे में इंजीनियर है। ये दोनों आके इतना आनंद से बोला हम इधर का मराठी मीडियम का स्टूडेंट है सर, आपको हम जानता था मगर आप हमको जानता नहीं होगा। और वो हमको तो बहुत खुशी हो गया, ऐसे तो मराठी मीडियम स्कूल से इस एरिया का जो लोगों को और थोड़ा सा लंबा से भी आके जो लोग बच्चा लोग आता था उनके लिए अभी भी हमारा रिजल्ट मराठी मीडियम का 100% है। हाईएस्ट इज 92%, हाईएस्ट इज 92%, 100% रिजल्ट सभी बच्चे पास हुए हैं। ऐसे मराठी मीडियम स्कूल्स हम कभी बंद नहीं करने का है, ऐसे हम सोचते हैं। मगर आप लोगों का सहाय होना चाहिए इसके लिए। स्टूडेंट्स आता नहीं, आजकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो गया, सब इंग्लिश मीडियम के लिए आता है। मगर इधर से मराठी मीडियम का जो बच्चे को जो 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 तरक्की मिला वो इंग्लिश मीडियम का नहीं मिला, ये भी मैं बोलना चाहता हूँ। कारण क्या है, मातृभाषा में जो जिसमें पढ़ता है सीखता है उनका जो अनुभव, उनका जो फ्यूचर एजुकेशन उसको जो हेल्प मिलता है वो दूसरा कोई मीडियम का नहीं होता है। इतना ही बोलता हूँ। नमस्ते।